Hello everyone, welcome back to this physics lecture. Today we are going to learn itself about that types of work done. Okay, so in our previous topic we have discussed up to this that how many types of work we are having. So in today's lecture especially we are going to take their examples and the conditions when they are going to happen. Okay, so for this purpose student, firstly let us to look over here that previously in our class with the help of this formula w equals to f s cos theta. Okay, so there we said that this cos theta can have different value. तो cos theta की हमारे पास क्या हो रही थी, values अलग हो रही थी, that it was having this value 1, it can have the value -1, it can have the value 0. तो cos theta की जो वैल्यू थी वो अलग अलग एंगल के ऊपर 1 -1 और 0 भी हो रही थी. ठीक है. सो on the basis of this student we said over there that there are three type of the work done. One work done, it is said to be positive work done, while the other work done is there, that is zero work done, and the next work done, it is over there negative work done. Okay, so now let us look over here that when there is positive work done, so when there is positive work done, so firstly we are going to discuss with this one. Okay, so we are going to say student when this angle is of 0 degree. So at that time what will happen, this formula will become fs, w is equal to f into s. So remember over there whenever you have to find out this positive work done, so at that moment you need to do one thing, you have to find out, you have to use this formula that w equal to fs, and what will be the angle in that, it will be of 0 degree. Okay, so over there now the next thing that it is that which we have said that force and displacement are in the same direction, force and displacement are in same direction. Okay, so we are going to take this example. Let us to see over here this example. We have supposed there is this body and we are applying a force on it, so there is the force on it. Okay, so this body is on the ground, here it is on the ground. So when you will apply the force, so what will happen, this body will go in the direction of the applied force. Okay, so what is happening, this force and displacement both are in the same direction. So this we are getting over there that force is in toward the right, displacement is also toward the right, so therefore both are parallel, and that angle is in this case is taken to be 0 degree, and thus we are getting that it is what it is, this our positive work done. So this is our positive work done. So, okay, so this is our positive work done. So now over there with the second example we are looking that what we are doing in this example, we are going to pull. So when we are going to pull, so what is happening, so again if you will check that we are going to apply the force toward left, and in which direction body is moving, it is again toward left. So that is what is happening over here, force and displacement both are toward left, both are toward left, and the angle between them, it is again 0 degree angle. So this we are taking over there that the angle between these will remain 0 degree. So over there we come to know whenever we are getting this condition, so this time the work done is taken to be positive work done. Okay, and the second next condition student which we have to look, for example we are supposing this the third one example, there is a body which is going to fall down. Okay, so when it is falling down, so what is happening, that earth is attracting it downward, there is gravity. So what is happening, earth is attracting it downward, and another which is important, it is also having displacement in downward. अर्थ भी नीचे की तरफ खींच रही है, डिस्प्लेसमेंट भी दोनों नीचे की तरफ हैं, तो उसमें what is happening over there that this work done it is positive. So we are saying that work done, that by the gravity when on falling body, it is said to be positive work done. Okay, so all this is that we are taking here, they are the examples of positive work done. Okay, so now let us to look one more example. So this example which we are having student over here, here it is
what we are going to do now? We are going to lift the body. Okay, so when you will apply the force on the body in upward, this is the body, this is the body. Okay, so when you will apply the force on the body in upward, so what will happen over there? The again the displacement in the body will be in upward direction. Displacement is in the same direction of applied force. So thus we are saying that this time that work done in this example, it is again what? It is positive work done. Okay, so now next that which we are looking, student, over here, this is our fifth example, which is regarding to the positive work done. Fifth example, so if you will look that when ball is thrown upward. Okay, so suppose that you are having, this is the ball, here is the ball, you applied the force in upward direction, and this ball is also going in upward direction. So displacement is in the same direction, means your force and displacement both are in the same direction. So therefore this work done is what? It is positive work done. Okay, so thus over here, student, we come to know that these example, while we are pushing, we are pulling, we are when the body is falling down, so gravity does positive work. When we are lifting the body, so that time again we did this positive work. And over here, that when we throws the ball up, so work done by us, it is taken to be positive. Okay, so all these are the examples of positive work done. And one more condition you will learn for this one condition. Okay, so the angle, it is not necessary only when this angle will be 0 degree, so only then this work done will be positive. Okay, so here it is the condition angle which I am going to specially mention over here. So at the top of this one I am going to show that this theta, it must be greater than or either equal to 0 degree. ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन होने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो थीटा है ये 0 डिग्री के बराबर या उससे ग्रेटर होना चाहिए. बट इट शुड बी लेस देन दैट ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, लेकिन हमारे पास ये 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए. ठीक है, या इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, जो हमारे पास वर्क डन है इट इज़ पॉजिटिव. तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए एंगल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? ये 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए. ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वर्क डन है वो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा. दिस इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट दैट विच वी आर टेकिंग ओवर हेयर, इट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ द वर्क, स्टूडेंट. हेयर इट इज़ zero work done. Now we are going to discuss about this zero work done. So zero work done when we said that body has no work. ठीक है, तो वर्क जीरो कब होता है? तो अगर हम चेकआउट करें, हमारे पास जो फार्मूला था, फार्मूले में क्या लिखा गया था स्टूडेंट? जो वर्क डन था एट एन एंगल, वो लिखा था एफ एस कॉस थीटा. ये हमारे पास फार्मूला बना था. ठीक है, तो हमारे पास इसमें चेकआउट ओवर देयर कि अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती थी? 0. ठीक है, तो मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ठीक है, दूसरी बात, या तो फोर्स 0 कर दो, मतलब कि आपने फोर्स ही नहीं लगाई. तीसरी बात, आपने फोर्स लगाई लेकिन बॉडी जो है वो मूव ही नहीं करती. ठीक है, तो इसलिए इन तीनों सिचुएशंस में क्या हो जाता है? जो वर्क डन है वो 0 हो जाता है. ठीक है, सो रिमेंबर ओवर देयर क्या हो रहा है इसमें? ये जो फोर्स है ना, ये डिस्प्लेसमेंट की क्या हो रही है? परपेंडिकुलर हो रही है. इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़, जो हमारे पास फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होती है इसमें. ठीक है, और दूसरा इसमें हमारे पास या तो फोर्स 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, तो उस वक्त क्या हो जाता है? वर्क डन भी 0 हो जाता है. ओके, सो लेट अस लुक फॉर फ्यू ऑफ द एग्जांपल. ये हमारे पास कुछ एक एग्जांपल है. जैसे स्टूडेंट हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज दिस वन. इसमें क्या हो रहा है? ये हमारे पास ये अर्थ है. ठीक है, और इसके बाहर जो प्लेनेट है ये हमारे पास अर्थ के बाहर सैटेलाइट है.
सैटेलाइट जैसे मून हो गया या फिर दूसरे हमारे पास सैटेलाइट्स हैं। ये सैटेलाइट क्या कर रहे हैं, इस अर्थ के चारों तरफ इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो वन थिंग विच वी कम टू नो कि हमारे पास जो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा ही सर्कुलर पाथ के अंदर की तरफ लगती है, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगी अंदर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर, अर्थ की तरफ लग रही है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इस प्लेनेट की वो तो ऐसे हो रही है। अगर अब मैं टेंजेंट लेता हूँ तो टेंजेंट से उसकी डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ कि उस सर्कुलर पाथ के ऊपर उसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुई। तो दोनों के बीच का एंगल क्या रह गया, तो ये दोनों के बीच का एंगल मेरे पास 90 डिग्री हुआ। सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो एंगल आया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो फोर्स इस तरह से अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, और एंगल 90 डिग्री। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है दैट द वर्क डन विल बी इन दिस केस इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इट डज नो वर्क ऑन दैट सैटेलाइट, तो इसका वर्क जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, बिकॉज यू विल मेंशन ओवर देयर दिस एंगल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल विच वी आर गोइंग टू टेक स्टूडेंट। जैसे मान लो मेरे पास एक बुक जो है, इट इज़ प्लेस एट द टेबल या ऑन द टेबल, इट इज़ प्लेस ऑन द टेबल, ओके। बट इफ़ आई विल नॉट अप्लाई द फोर्स, व्हाट विल हैपन, this body will not move from there, and if this body will not move, so what will be my work on this book, दार इट इज़ जीरो। तो मेरा जो वर्क डन होगा उस बुक के ऊपर वो जीरो हो जाएगा। नाउ द थर्ड केस, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ वॉल, ये मैंने यहाँ पर एक वॉल कंसीडर कर ली, ओके, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करी, ठीक है। सो सपोज व्हाट विल हैपन, क्या होगा, so you will find over there that throughout the day you are going to push it, what it will not have any displacement। आप घर के जो दीवार है ना, जो वॉल है, उसको अगर आप पुश करना शुरू कर दोगे तो आप पूरे साल उसको हिला नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, जीरो, ठीक है। तो वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई तो आपके पास वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वी आर हैविंग द एग्जांपल। नाउ वन मोर एग्जांपल विच वी आर गोइंग टू टेक ओवर हियर। सो दिस एग्जांपल दैट इट इज़ अ कुली, ठीक है। हमारे पास ये एक कुली है, कुली क्या कर रहा है, सिर के ऊपर एक लोड उठाता है, ठीक है। और लोड उठाने के बाद वो क्या करता है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इस तरह से चलता है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। सो जस्ट टू चेक ओवर देयर, जो उसके सिर पर लोड रखा है वो किस तरह फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उस लोड की फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, और ये कुली कैसे चल रहा है, ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड चल रहा है। तो एंगल दोनों के बीच का क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सो वंस अगेन यहाँ पर आई एम गोइंग टू शो इट विद दिस एग्जांपल, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो लोड है, दिस इज दैट लोड, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लोड है, इस लोड का जो वेट है वो किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। और जो कुली की डिस्प्लेसमेंट होगी वो अलोंग द दैट हॉरिजॉन्टल पाथ होगी, तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो इट मीन टू से हाउ मच इज़ हिज वर्क, इसका वर्क क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर इसकी फोर्स जीरो नहीं है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, वर्क डन जो है उसका जीरो हो जाता है, ओके। सो नाउ लेट अस टू लुक ओवर हेयर दैट द थर्ड टाइप ऑफ द वर्क डन नाउ स्टूडेंट। अब हम तीसरे टाइप के वर्क डन की बात करते हैं। सो दिस आई एम हैविंग ओवर हेयर, इट इज़ नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, तो कंडीशन है उसके लिए एंगल क्या होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। वैसे एंगल जो है इसका नॉर्मली क्या होना चाहिए, एक और कंडीशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसका जो एंगल है दैट इट शुड बी ग्रेटर दैन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इट शुड बी इक्वल और लेस दैन 180 डिग्री, ये एंगल की कंडीशन है, ठीक है। अगर एंगल जो है वो हमारे पास 90 से ग्रेटर हो जाता है और 180 के इक्वल या उससे कम होगा, तो उस वक्त क्या होगा, हमारे पास जो वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क डन के लिए क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आलमोस्ट अपोजिट होंगी, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दे आर गोइंग टू बी अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है।
नाउ ओवर हेयर जस्ट टू लुक इट इन सम ऑफ द एग्जांपल। जैसे हम बात करते हैं भी, हमारे पास जब भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल में, जैसे मेरे पास ये एक बॉल थी, ठीक है, तो इस पे ग्रेविटी ने क्या वर्क किया, तो ग्रेविटी तो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, बॉल आपने ऊपर की तरफ थ्रो करी थी, ठीक है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है। वेट किसकी वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। तो ग्रेविटी उसको किस तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर सिंपल सी बात बनी भी, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस बॉल के ऊपर और वेट उसका इस तरह से लग रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो इसमें आपको एक कन्फ्यूज़न आ सकती है। कन्फ्यूज़न क्या हो सकती है स्टूडेंट इसमें, कि पहले मैंने बोला था बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो ये जिस तरफ मैंने फोर्स लगाई उसी तरफ डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है। तो उस वक्त मैंने क्या बोला, ये पॉजिटिव वर्क है। लेकिन ये किसका वर्क है, ये तो मेरा वर्क है ना, मैंने उसको ऊपर फेंका, ये मेरी फोर्स जिस तरफ लगी वो बॉडी भी उसी तरफ जा रही थी, तो इसलिए ये मेरा वर्क डन पॉजिटिव हुआ। लेकिन अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी का तो वो अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए अगेंस्ट ग्रेविटी जो भी वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसमें हम जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास है दैट इट इज़ रिगार्डिंग टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये एक कार है, ये एक कार, ठीक है, तो ये कार जो है मेरे पास, अगर ये राइट साइड चल रही है, ये इस तरह से चल रही है, डिस्प्लेसमेंट इसकी राइट साइड हो रही है, तो फ्रिक्शन हमेशा ही क्या करते हैं, इसके मोशन को अपोज करती है, तो वो हमेशा ही मोशन के अगेंस्ट लगती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुई, ये जो फ्रिक्शन है ये टूवर्ड लेफ्ट एक्ट हो रही है, ये टूवर्ड लेफ्ट एक्ट हो रही है, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है कार की वो तो टूवर्ड राइट हो रही है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। तो अगेन जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट दैट विच वी आर टेकिंग, इट इज़ वर्क डन बाय ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक, जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हो तो वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारी कार थी ये आगे की तरफ चल रही थी और आपने ब्रेक लगाई, तो ये ब्रेक उसको इस तरह से रोकेगी, ठीक है। तो जो ब्रेक है वो उसके मोशन के अगेंस्ट लगेगी, तो इसलिए जो वर्क डन है बाय दिस ब्रेक इट विल बी आल्सो दैट नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर हमने तीन टाइप के वर्क की बात की, जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन था, ठीक है। ये कब, कौन से एंगल के ऊपर, कौन सी कंडीशन पर ये वर्क डन होंगे, सो वी डिस्कस अबाउट दिस वन। नाउ ओवर हियर वी आर गोइंग टू टेक दिस अनदर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट बात करते हैं, ये जो वर्क डन है ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब कि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बाकी हमारे पास इसकी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास स्केलर है। सो जस्ट लुक ओवर हेयर, यूनिट क्या यूज़ करने वाले हैं, तो यूनिट हमारे पास तो दो टाइप के होते हैं, एक एसआई होगा, एक इसका क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट होगा, दो टाइप के यूनिट होंगे, ठीक है। और हमने लिखा था कि भाई फार्मूला वर्क डन का, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ हो तो एफएस होती है, ठीक है। तो फोर्स को न्यूटन लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसके क्या बन गया यूनिट, न्यूटन मीटर, और इस न्यूटन मीटर के ग्रुप को एक्चुअल में जूल बोला गया, ठीक है। तो इसलिए वर्क डन के जो यूनिट हैं वो जूल हैं, एनर्जी के जो यूनिट हैं वो भी जूल हैं, ठीक है। तो न्यूटन मीटर हमारे पास ये होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ओवर देयर स्टूडेंट, कि इसके जो छोटे यूनिट है वो क्या होंगे, तो छोटे यूनिट सीजीएस, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट इसके क्या बन गए, जो न्यूटन था उसको डाइन बोला गया, मीटर के छोटे यूनिट सेंटीमीटर, तो इसलिए ये डाइन सेंटीमीटर बने, और इस ग्रुप को हमने नाम दिया है अर्ग, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, मतलब कि ये जो जूल और अर्ग है क्या एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं,
तो इसलिए रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है। सो ओवर हेयर स्टूडेंट, हमारे पास कुछ बड़े यूनिट भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे हमारे पास किलो जूल। किलो जूल मतलब कि के का मतलब 10⁻3, सो इट इज़ 10⁻3 जूल। मेगा जूल, मेगा जूल मीन्स 10⁻6 गीगा, तो 10⁻9 जूल। ठीक है। तो ये हमारे पास से क्या हो जाते हैं यहाँ पर अदर वर्क डन। ठीक है। और जब आपको डिफाइन करना हो 1 जूल, ठीक है, हमसे कई बार ये पूछ लिया जाता है डिफाइन 1 जूल। ठीक है। तो फार्मूला है, सीधी सी बात है, देखो एफ एस। ठीक है। तो आपने क्या कहना है, 1 जूल का वर्क कब करोगे आप, जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करेगी, तो उस वक्त जो वर्क डन है वो कितना होगा, 1 जूल होगा। यूज ओवर देयर 1 यूनिट फोर्स एंड यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पर वर्क डन है, इट इज़ सेड टू बी 1 जूल। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर टेकिंग ओवर हेयर, इट इज़ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने कितना काम किया। ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, सपोज किया कि यहाँ पर ये बॉडी रखी थी विच इज़ एट द ग्राउंड। ओके, सो दिस वॉज एट द ग्राउंड। नाउ वी अप्लाइड द फोर्स टू लिफ्ट इट अप। हमने इसको h हाइट तक लिफ्ट कर लिया। ठीक है। सो कैन यू टेल मी, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको अपना बैग ऊपर उठाना है, ठीक है, तो आप मिनिमम कम से कम कितनी फोर्स लगाओगे। ठीक है। सो डेफिनेट इज देयर, ये आपका बैग अगर 10 kg का है, मैं किलोग्राम में शो कर रहा हूँ, तो आपको उठाने के लिए भी कम से कम 10 kg लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जितना बैग का वेट है, जितना बैग का वेट है उतना आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ये फोर्स मैंने ऊपर की तरफ लगाया था, इसका वेट जो था वो कितना था, mg के बराबर था। ठीक है। तो इसलिए मैंने कितने उसके वेट के बराबर फोर्स लगाई। फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बैग एंड विच इज़ इक्वल टू mg। तो वेट को मास इंटू जी से निकालते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो डिस्प्ले यहाँ पर वर्क डन कितना किया मैंने, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, तो मैंने जितनी फोर्स लगाई उसको उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज़ व्हाट, एफ इंटू एच। ठीक है। लेकिन फोर्स मैंने कितनी अप्लाई की, तो ये वेट ऑफ द बैग के बराबर था। सो दिस विल बिकम mgh। सो दस वी गेट ओवर देयर वर्क डन in this case that it is what, it is mgh। okay, this is mgh। so this formula you will use whenever we are going to lift the body। जब भी कोई बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट दैट वी आर लुकिंग ओवर हेयर, दिस इज़ द केस। सपोज करो मेरे पास ये यहाँ पे स्टेयर्स हैं। ठीक है। तो हर एक स्टेयर की जो हाइट है वो एक बराबर है। ये हर एक स्टेयर की हाइट इस तरह से एक बराबर है। ठीक है। जैसे मान लो ये इसकी हाइट है h1, ये हमने हर एक स्टेयर की हाइट कितनी ले ली, h1 ले ली। ठीक है। तो विल यू टेल मी कि आपको h1 हाइट, ठीक है, जो है वो मतलब कि ऊपर की तरफ चढ़नी है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे ऊपर की तरफ। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ करोगे, ऊपर की तरफ। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास कितनी फोर्स लगा रहे हैं आप, अपने वेट के बराबर जितना आपका वेट होगा। ठीक है। तो इसलिए कितना वर्क डन किया आपने एक स्टेप को चढ़ने के लिए। ठीक है। सो जनरली आवर आंसर विल बी देयर कि एक स्टेप को चढ़ने के लिए जो मेरा वर्क डन होगा एक स्टेप के लिए, वो मैंने किया mgh1। ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में कर रहा हूँ ना, ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ, तो इसलिए कितना हो गया, mgh1। ठीक है। उसके बाद जब मैं दूसरा स्टेप यहाँ पर स्टेप अप करूँगा, ठीक है, तो दूसरा कितना हो जाएगा मेरा स्टेप, तो इसमें भी जो मेरा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, mgh2। तीसरे में क्या हो जाएगा, ये दैट इट इज़ mgh3। ठीक है। तो इस तरह से मेरा वर्क डन हो जाएगा 3 स्टेप चढ़ने के बाद। ठीक है। तो अगर मुझे ये बताना हो कि मैंने टोटल वर्क डन क्या किया, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 + W2 + W3।
ठीक है। ये तो 3 स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें W1 प्लस W2 प्लस W3, लेकिन अगर मेरे पास क्या हो जाएंगे यहाँ पर n स्टेप हो जाएंगे, n स्टेप, तो आपके पास क्या हो जाएगा वो, क्योंकि हर एक केस में हाइट तो कितनी थी, सेम ही है। यही बोला था ना हमने, हर एक स्टेप की हाइट क्या है, सेम। ठीक है, तो इसलिए हर एक केस में जो वर्क डन हुआ वो तो आपने क्या लिया, एक बराबर। तो आपने कितने स्टेप चढ़े, तो जैसे मान लो आपने अगर n स्टेप चढ़े हैं तो आपने क्या किया, W1 के n टाइम काम किया, जितना वर्क डन आपने पहले स्टेप को चढ़ने के लिए किया उसके n टाइम्स आपने वर्क डन कर लिया। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो वर्क डन है उस n स्टेप के लिए वो n टाइम्स ऑफ W1 लिखा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर अगर जैसे देखो मैंने क्या बोला, n टाइम, यहाँ पे 3 स्टेप की बात हम ले रहे थे सपोज, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 ऐसे लिखा था मैंने। ठीक है, तो W1 कितना था, MgH1, ठीक है, प्लस W2 कितना हो गया, MgH1, ठीक है, MgH1, और प्लस W3 कितना हुआ, MgH1। ठीक है, सो ना लुकअप ओवर देर, ये जो हमारे पास Mg तो सब में कॉमन आ रहा है, तो H1 कितनी बार ऐड हो रहा है, तो 3 स्टेप हैं तो H1 3 ही बार ऐड हो रहा है ना। ठीक है, अगर मेरे पास n स्टेप होंगे तो ये कितनी बार ऐड होगा, n टाइम ऐड होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई जो n टाइम अगर हमारे पास जो स्टेप होंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, टोटल हाइट बन जाएगी h, तो इट इज़ टोटल हाइट h ओवर है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो वर्क डन किया हमने, दैट सिंपली, अगर आप यहाँ से कहते कि इससे आप h हाइट ऊपर गए तो कितना वर्क डन किया होता, MgH वर्क डन आपने किया होता। ठीक है, और आप स्टेयर अप करके ऐसे ऐसे स्टेयर अप करके गए तब भी आपने वर्क डन कितना किया, तब भी वर्क डन आपका पास आया है दैट इट इज़ MgH1। दोनों ही केसेस में वर्क डन एक बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर हैं, क्योंकि हमारे पास जो हाइट है वो यहाँ पर एक बराबर आ रही है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप चढ़ने के बाद या डायरेक्टली अगर आप स्टेप अप करते हो तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो वर्क डन है वो आपका एक बराबर होगा। ठीक है, तो रिमेंबर दिस वन, डायरेक्ट हाइट अगर आपको दी है, ठीक है, तो जो वर्क डन है वो MgH, और चाहे आप स्टेप बाय स्टेप अगर चढ़ना कोशिश करोगे वहाँ तक तब भी आप वही वर्क डन करोगे। ठीक है, so hope so that you come to know about how to have the answers for this one. So thank you and have a good time.